students. Okay, class 12 subject account chapter 2. This is unsolved sum which you will get on page number 118, question number 7. Unsolved sum. Now we are solving question number 7, page number 118 for chapter 2. See what is given in the question. See what is given in your question. From the following transaction of receipts and payment account of Pavan Putra Hanuman Vyayam Shala Parbali. Okay, here receipts and payment account is given for Pavan Putra Hanuman Vyayam Shala, and you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet for 31st March 2019. तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है. अगर आपने बनाया नहीं है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये ड्रॉ कर लो और बाद में साथ साथ में सॉल्व करना आप लोग भी. सबसे पहले हम एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं. सी एडजस्टमेंट बिलो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. एडजस्टमेंट नंबर 1, दिस इज अबाउट सब्सक्रिप्शन, सो मार्क सब्सक्रिप्शन नंबर 1. सेकेंड मार्क टू सैलरी. थर्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. फोर्थ एडजस्टमेंट, write down aside to third adjustment number 4. Fifth adjustment about entrance fees, mark to entrance fees. See, receipt and payment account में receipt side में है entrance fees, उसे mark करो with adjustment number 5. Sixth adjustment interest on investment, mark to investment. And seventh adjustment capital fund. See, capital fund is given rupees 70,000 on 1st April 2018. See, our accounting year closes on 31st March 2019. So, what is opening date? 1st April 2018. So, this capital fund, this is opening balance of capital fund. And for our closing balance sheet, we want all closing balances. See, this is our closing balance sheet, and for closing the balance sheet, we require all closing balances. So, first of all, write down capital fund. Capital fund, adjustment number 7, rupees 70,000 on 1st April 2018. So, opening capital fund, so write down in inner column. See, if there is any adjustment regarding capitalized, you have to give effect over here. And after closing income and expenditure account, you will get surplus or deficit. If there is a surplus, add to capital fund. If there is a deficit, deduct from capital fund. So for the same, we wrote it in inner column. Now start with receipt and payment account. See, receipt side, debit side. डेबिट साइड में देखो, यानी रिसिप्ट साइड में फर्स्ट क्या दिया हुआ है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड रुपीज 5,000 कैश इन हैंड. ये ओपनिंग बैलेंस है, उसका यहाँ पे कहाँ पे भी इफेक्ट नहीं आएगा, ध्यान में रखो. जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है उसका इफेक्ट आता है असेट साइड. सेकेंड, टू सब्सक्रिप्शन. नाउ हियर टू सब्सक्रिप्शंस आर गिवन. One is of the year 2018-19 and 2019-20. Now this is year 2018-19. So this is current year. So subscription is of the current year 2018-19. 18,000. कितना दिया हुआ है? 18,000. Now remember student, receipt side, whatever the amount of subscription is given receipt side, that is actual subscription received. यानी इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन है वो पता नहीं, ये क्या है? एक्चुअल में कितना पैसा मिला है. नाउ सी एडजस्टमेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था. एडजस्टमेंट नंबर 1, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच. सी आई एम राइटिंग वर्किंग नोट ओवर हियर. आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, आप सबको पता ही है, बैलेंस शीट के नीचे लिखना है. यहाँ पे मुझे जगह है इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ. वर्किंग नोट फर्स्ट, calculation of subscription. See what is given. Total members are 500. Total members कितने हैं कंसर्न में? 500 है. और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है? 50 रुपीज. 500 into 50 if you do, you will get 25,000. So 25,000 rupees, 25,000 is actual amount of subscription. Adjustment number 1 में क्या था? देखो, there are 500 members paying an annual subscription of ₹50. So 500 members into ₹50. So total
25,000. नाउ सी रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन इस साल का यानी करंट ईयर का 2018-19 का कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है? 18,000. एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है? 25,000. So difference between the both, say rupees 25,000 minus rupees 18,000. So rupees 7,000 is outstanding. यानी इतने मेंबर का पैसा अभी तक आया नहीं है पर इसी साल का है. और हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं? जो भी इस साल का है वो पूरा का पूरा लिखता है. सो राइट डाउन इन इनकम कॉलम बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसिप्ट साइड में कितना दिया हुआ है? 18,000 को लिखना है आपको. सो 18,000 और इस साल का पर अभी तक मिला नहीं है. आउटस्टैंडिंग कितना है? 7,000. सो प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर $7,000. सो आउटर कॉलम 25,000. यानी इतना ध्यान रखो. मैं हर शाम में आपको बता रही हूँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल का जितना है वो सब आना चाहिए. आउटस्टैंडिंग हो तो आपको प्लस कर लेना है. सो 18,000 प्लस 7,000 आउटर कॉलम 25,000. नाउ सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग जैसे हम फाइनल अकाउंट में देते थे उसी तरह से. यानी इतना पैसा है, इतना इनकम है पर अभी तक मिला है क्या? नहीं. और इनकम आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो हम बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखते हैं? असेट साइड. यानी पैसा मिलने वाला है, आज नहीं तो कल मिलने वाला है. सो वो अपनी क्या हो गई? असेट हो गई. सो राइट डाउन असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन of current year. So outer column 7,000. Clear? So 7,000. अभी रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन में देखो नीचे क्या दिया है? 2018-19 का था 18,000. उसके नीचे दिया हुआ है 2019-20. 19-20 मीन्स नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है? 410. इस साल का है क्या? वो नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है. सो इस साल का जो भी रहता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे इनकम साइड में लिखा. पर जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला है तो वो क्या हो गई? लायबिलिटी. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. कभी भी पैसा एडवांस में मिला है तो उसकी सर्विस तो देनी बाकी है तो वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है. तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड के नीचे यूज सम लाइंस down the capital fund to give effect of surplus deficit. Leave 3 lines and write down subscription received in advance. In advance means next year 2019-20. How much it is? 410. You can write directly out of column. After that, donations. There is a no adjustment. Donation 6,000. It will come to income column by donations. Outer column 6,000. After donation, receipts from entertainment 5,400. By receipts from entertainment. See, whatever there is in receipt column and if it is related to income and expenditure account, it will go in income. After that, it is given interest. By interest, rupees 400. Then in receipt column next, entrance fees 6,200. There is an adjustment. So write down in inner column. See adjustment number 5. 50% entrance fees is to be capitalized. See whatever income is capitalized. If it is given like is capitalized, then you have to deduct from here because the income and expenditure
minus 50% capitalized, 50% of 6,200, 3,100. So this capitalized part will come in capital fund plus 50% entrance fees. That is 3,100. So 73,100. We wrote in inner column only because there is a spill effect to be for surplus or deficit. So receipt side over receipt side पूरी हो गई है. अभी पेमेंट साइड देखो. फर्स्ट दिया है बाय सैलरीज. अभी जो भी पेमेंट साइड में है और यहाँ किस अकाउंट से रिलेटेड है तो कौन सा साइड आएगा? एक्सपेंडिचर. पेमेंट किया है यानी पैसा गया है. पैसा गया यानी वो क्या है? एक्सपेंडिचर. ओके. सो फर्स्ट आइटम इज सैलरीज. टू सैलरीज 6,000 right in the column because adjustment. See adjustment number 2. Outstanding salary was rupees 1,200. Outstanding means what? Unpaid. दिया नहीं है. Outstanding. इस साल का वो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, पर दिया नहीं है. तो दिया नहीं है, वो पैसा नहीं गया, पर इस साल का है वो. तो हमें कहाँ पे लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. So right over here plus outstanding 6,000 plus 1,200. So 7,200. After salaries, next item. Okay, there is a one effect of outstanding. Outstanding salary. Second effect. Where it come? Liability or asset side? Liability side. Write down liability side. Outstanding salary. How much it is? 1,200. See, कभी भी एक्सपेंसेस है इस साल का है, दिया नहीं है, अनपेड है, तो वो क्या हो जाती है? कंसर्न की लायबिलिटी. बिकॉज कंसर्न इज लायबल टू पे दैट एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर एनी टाइम. सो इट इज लायबिलिटी ऑफ कंसर्न. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200. One effect add to that concerned expenditure, that is salary over here. Second, write down liability side. After salary, next expenses, entertainment expenses, no adjustment. Entertainment expenses, how much it is? 2,480. Next, sundry expenses 1,300. After sundry expenses, electricity charges 1,200. Two electricity charges. $1,200. Then rent 700. After that, investment. See, investment, this side it is given payment side. यानी क्या हुआ? ये जो है पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभणी, इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट क्या किया? परचेज किया. पेमेंट साइड दिया यानी पैसा गया, इन्वेस्टमेंट आया है. तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा? असेट साइड. बिकॉज इट इज अ विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है जैसे सैलरी, सैलरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो कहाँ पे आता है? एक्सपेंडिचर साइड. इन्वेस्टमेंट परचेज किया वो क्या है? असेट है. राइट डाउन असेट साइड. इन्वेस्टमेंट्स 15,000. से एडजस्टमेंट हमने मार्क किया. एडजस्टमेंट नंबर
मंथ का है accrued 6 month, so into 6 upon 12. क्लियर? तो ये कैलकुलेशन करना है. सिंपली 50,000 का पहले 5% निकालो. इट कम्स 750 इंटू 6 अपॉन 12, यानी उसका आधा करना है. 6 मंथ यानी आधा, ऐसे भी कर सकते हो. सो अमाउंट कितने आ गई? 375. सो दिस इज द इंटरेस्ट विच इज एक्रूड आउटस्टैंडिंग. उतना इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है अभी तक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है? असेट है, यानी वो इंटरेस्ट अपने को मिलने वाला है. तो मिला है क्या? नहीं. तो उसका इफेक्ट देना है हमें. एक इफेक्ट आएगा असेट साइड. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? 375. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे बस उसी तरह से इनकम साइड में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375. Okay, you can add this interest in this interest also. 400 में भी आप ऐड कर सकते हो आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट, ओके, इन्वेस्टमेंट हो गया. उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800 रुपीज. राइट डाउन एक्सपेंडिचर बिलो रेंट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 800. नेक्स्ट, पोस्टेज 3200. स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से आइटम्स रहते हैं जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहती, वो एज इट इज लिखने रहते हैं. एंड डोंट मिस अ सिंगल आइटम. ओके, क्योंकि हर एक, अगर आपका फुल एंड फाइनल आंसर भी गलत होगा, पर ये जो भी आइटम्स आप पोस्ट करते हैं हर एक आइटम को मार्क्स रहते हैं. 1 मार्क या हाफ मार्क, जिस तरह से मार्क डिवाइड किए गए रहते हैं पूरे सम के. इसलिए कोई भी आइटम मिस करना नहीं है. अगर आपको नहीं भी आ रहा है सम, कि फुल सम नहीं आ रहा है, टोटली नहीं आ रही है, पर जितने आइटम्स आप ट्रांसफर कर सकते हो आपको पूरा करना है. आफ्टर पोस्टेज हो गया. उसके बाद फिक्स डिपॉजिट. सिर्फ फिक्स डिपॉजिट एफडी परचेज की है कंसर्न है व्यायामशाला में, तो एफडी जैसे हमें इन्वेस्टमेंट लिखा असेट साइड बस उसी तरह से लिखना है. फिक्स डिपॉजिट 3,900. अब तक फिक्स डिपॉजिट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस गिवन, वो कहाँ पे आता है? असेट साइड. हमेशा याद रखो, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. कभी कभी यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस भी लिख लेते हैं. ओपनिंग कैश बैलेंस में हमें सिर्फ क्लोजिंग कैश बैलेंसेस लिखना है. कैश एंड बैंक और कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक है 830. कैश एंड बैंक 6,000. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ओवर. नाउ सी एडजस्टमेंट 1 हो गई अपनी. सब्सक्रिप्शन फी सेकेंड. सब्सक्रिप्शन फी हमने जो किया था 25,000, और ये जो आउटस्टैंडिंग था उसका इफेक्ट हमने दिया यहाँ पे असेट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई है. थर्ड एडजस्टमेंट, see assets balances as given. Assets on 1st April 2018 were received as follows. Means opening asset के balances दिए. हमें यहाँ पे क्या लिखना है? closing balance. तो अगर कुछ adjustment नहीं रहती उसमें तो opening balances as it is यहाँ पे आ जाता है. But in this sum there is an adjustment in the next adjustment 4. So write down in inner column only building. How much? 50,000. Building is 50,000 and there is adjustment. Provide depreciation on building at 5%. So minus depreciation 5%. Say 50,000 into 5%. 5 5 is 25. So 2,500. Okay. So outer column 50,000 minus 2,500. 47,500. Second effect of this depreciation, expenditure side, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस
depreciation on building, outer column 2500. नेक्स्ट फर्नीचर का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 15,000 माइनस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है 10%, सो 15,000 इंटू 10% 1,500, so outer column 30,500. Second effect of this depreciation, expenditure side to depreciation on furniture 1,500. Next, adjustment number 4 over fifth over entrance fees. Entrance fees का हमने क्या किया था? See here 6,200 minus किया 50% and 50% add किया capital fund. Sixth adjustment also over, seventh adjustment over. So now what you have to do? Close expenditure side, income side total करना है, close income and expenditure account. Do totaling of both sides. See which side is greater, just check. You can take pause here in the video and do totaling yourself. Don't just copycat. So you have to total. Do totaling of both sides. See total of income side is 40,275. Expenditure side total is 20,880. So we get surplus. Write down debit side to surplus. That is excess of income over expenditure 19395. See income side कितनी आ रही है 40,275 और एक्सपेंडिचर साइड यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी आ रही है 20,880. सो इनकम ऐसे है, एक्सपेंडिचर माइनस, तो जो बैलेंस है उसे हम क्या बोलेंगे सरप्लस. और अगर उसका अपोजिट एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा आ गई इनकम से तो बैलेंस यहाँ आएगा जिसे बोलेंगे डेप्रिशिएशन. अभी ये सरप्लस की अमाउंट इसमें ऐड करनी है प्लस सरप्लस. सरप्लस आ रहा है 19395, इसमें ऐड करना है. तो जो टोटल आई है वो आउटर साइड में लिखनी है और बाद में बैलेंस शीट की टोटल करनी है हमको. दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए. See here, total of the both side 94,105. Okay, student. So here we finished with our question number 7. Now in the next video we will meet with our next sum. Thank you, students. Have a good day.